Mumbai studios of Republic TV, it's time for Arnab Goswami on the debate. Arnab Goswami on the debate at 9, powered by Century Laminates. A very warm welcome and good evening. Ladies and gentlemen, we are less than 24 hours away from what the farmers are calling a Chakka Jam. This Chakka Jam is scheduled to take place throughout the country. It is something that will happen pan-India. But what is the assurance that we will not see a rerun of what happened on the 26th of January? What is the assurance that we will not see the violence that we saw on the streets on the 26th of January? What is the assurance that again the policemen will not be beaten up by these alleged farmers? What is the assurance that everything will remain peaceful? Or can we as a country just sit back, let them have a free run? This is definitely not anarchy that we can let happen in our country. This is going to be the focus of our debate this evening. And yes, remember, you cannot let them hogwash you. Do remember there are pictures, there are images of all those who are responsible for inciting violence for what happened on the 26th. Number of FIRs have been filed by the Delhi police. The Delhi police is on the lookout for a lot of these people. And yes, you already have an international conspiracy also that we all need to bother about. We are building up to that big debate as we say good evening to our entire panel also in just a bit. But remember, the panel today will have a tough night because we want assurances from our guests that we will not see a rerun of the violence. The first debate is India against anarchy, and you, the viewer, should also speak up. Remember, it's a big debate that is lined up for you, followed by one more debate. This is in continuation to the Big Republic campaign, and we say the global conspiracy has been unveiled. We want to get down to the bottom of the investigation, and we want to find out who really wants India to be destabilized. That is just not it. It's a power-packed edition of the debate. This brings us to our third debate. This is the big Rath Yatra face-off. Remember, the Prime Minister is going to be in the state of West Bengal this weekend. What will we see? Republic tracking that and much more. But first up, we get you the headlines this Friday evening. शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा वो पूरे देश में जो किसान यहाँ पर नहीं आ पा रहे तो वे लोग आप अपने वहाँ पर कर लेंगे. Kisan unions now call for a nationwide 3-hour Chakka Jam on Saturday. Security stepped up on the borders of Delhi. पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है. भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती. The Congress stalls the parliament over farm laws. The agriculture minister is hitting back with that khoon ki kheti comment. The viral video of the alleged author of the Anarchy Toolkit reveals the entire global Tukre plot against India. Hip-hop artist Unquantified deletes the tweet on the farmers' protest, and he admits that yes, he is unaware of the details of the movement. It is rally versus rally in battleground Bengal. The BJP and the TMC face off over the Parivartan Yatra. And 4G services restored in all 20 districts of Jammu and Kashmir 18 months after the abrogation of Article 370. Ladies and gentlemen, just less than 2 weeks after you've seen what happened in the national capital witnessed some shocking violence in the name of a peaceful protest.
The farmers for the longest time told us that, listen, this is just about Kisan laws, this is just about the farmers, and listen, we will not have any violence. This will be a peaceful protest. But you saw anything but that. The farmers now are all set to hold what they call a Chakka Jam on Saturday. The Kisan Union leaders have promised that the protest will be peaceful and they will not breach the borders of the national capital. But as I said, they have made this promise before and they have flouted it. But will the Kisan leaders even keep their promise as New Delhi recuperates from the 26 January violence? This is an important question that we'll take an assurance on. And I want to know for how long can we let the anarchy continue on the streets of Delhi? Let's put out the entire story and then we debate. 11 days after nation witnessed violence on the streets of the national capital, a siege laid to the Red Fort, and an insult to our tricolour, the Kisan unions are gearing up for nationwide Chakka Jam. ये जो चक्का जाम की कल 6 फरवरी की बात हो रही है, वो तो होगी, शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। वो पूरे देश में जो किसान यहाँ पर नहीं आ पा रहे, तो वे लोग आप अपने वहाँ पर कर लेंगे और लोग उस अपनी पब्लिक से अपनी बात। लोग ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी की तरह कहीं नहीं कुछ नहीं ना। On Saturday, the farmer leaders have called for a 3-hour Chakka Jam from 12 p.m. to 3 p.m. in protest of farm laws. Though they have promised not to block the national capital, the law enforcement agencies are leaving no stone unturned. जो आंदोलन कर रही हैं वो हमारे दिल्ली के सीमा के बाहर अलग अलग राज्यों के इलाके में बैठे हुए हैं। हम लोग उन राज्यों के पुलिस के साथ कॉन्स्टेंटली हम उनके साथ समन्वय कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में है। हमारी पुलिस फोर्स तमाम इस तरह से जो सेंसिटिव एंट्री पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मौजूदगी रही। Despite the threat to law and order situation, Congress has decided to back the protest. किसानों की जो आंदोलन चल रहा है उसका पूरा समर्थन करना है और 6 तारीख को जो बंद की कॉल दे रखी है वो पार्टी उसका सहयोग करेगी। Meanwhile, as the Congress tried to block the proceedings in the House, the government's response set the record straight. दुनिया जानती है पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। In the run-up to the Saturday protest, security has been stepped up across the borders of Delhi. I'll request my camera person to show you the kind of barricading and the security which has been put in place at the Ghazipur border. You can see the multiple layer barricading. Heavy barricading has been done here at the Ghazipur border. You can see the normal barricading laced with barbed wires, cemented barricading. Will the Kisan unions keep their side of the promise? Let's debate. So promises have been made, but those promises have been broken. The promises have been broken again and again. So what is the guarantee that tomorrow everything will be peaceful, and who will take responsibility if something goes wrong? Gentlemen, that's the question I want to ask each one of you. And do remember, a lot of our viewers already writing to us and they want to know what will happen tomorrow. Can they step out of their homes safely? Chakka Jam call is the hashtag, viewers. Use that and send us your questions as we say good evening to Nalin Kohli of the BJP. Ratan Sharda is a political analyst and author. Dr. Sunil Singh is from the JDU. Sardar Balwinder Singh is an MP of the Rajya Sabha from the Shiromani Akali Dal. Atar Singh Sadhu is a national president and spokesperson of the BKU. Tajinder Singh Vark is a member of the All India Kisan Sangharsh Coordination Committee. He's on the broadcast from Ghazipur right now. Ratnakar Tripathi is a senior leader of the Congress party, and Tausif Ahmad Khan is an advocate and political analyst joining us on the broadcast from Kolkata. Nalin, what we saw on the 26th cannot be repeated. It was unprecedented. It shocked all of us, Nalin. We cannot afford a rerun of what happened on the 26th. This has to be very, very clear. Ratnakar Tripathi, before I let Nalin come in, I want you to tell me who will take responsibility for what happened. What happens tomorrow? Will you give us an assurance today on the broadcast, Mr. Tripathi, that everything will be peaceful tomorrow?
They are very much responsible, madam. Only thing was that on 26 January that BJP Who's responsible? infiltrated them. And that's why the chaos, the Deep Sidhu and party, nobody else. The proteges of the BJP. Tripathi ji, you haven't heard my question right, sir. I will repeat it. I will repeat it, sir. I only want to know that will you today give me an assurance that everything will remain peaceful tomorrow, sir? Every citizen of India can give you an assurance that everything will be peaceful tomorrow because government has already blocked and made the government is in a cavity. It's not out of the cavity. They have blocked every road and the farmers has promised that they won't enter the Delhi, city of Delhi. They won't enter Uttarakhand. Every person who hasn't been able to come to Ghazipur border will protest from where they are located. So it's very clear that unless until BJP does anything in Delhi, nothing is going to happen wrong tomorrow. There will be a very peaceful protest. They have to show to the government and the citizens of India that they were never wrong. It was only when the BJP people infiltrated the movement and made all that chaotic situation. Nothing is going to happen tomorrow, madam. Take it in writing. I am saying it on the channel. But don't blame me that because Congress was there, that is why I am promising. I am promising because I have heard the Kisan leaders today, yesterday, day before yesterday. They are very serious. They know that any step they won't take any step which will go against them. And I am very much assured that because the government has just locked the border, so anything which happens in Delhi lies with the central government. Anything which happens outside that border, that you can blame the Kisan and their leaders. And I am very much sure that nothing is going to happen. Thank you. Hello. Mr. Tripathi, you've made your opening comment, Nalin. Can we believe them again? Can we believe them, Nalin? Because then, Mr. Tripathi, are you forgetting the N number of assurances, sir, that came in the last time, Nalin? Are you prepared this time? Because they are again planning to pin the blame on the BJP tomorrow. I am saddened when I hear how Mr. Anything which happens in Delhi will be pinned to BJP. May I, Mr. Tripathi, now speak? Let Nalin complete his point, please. What Mr. Tripathi has said. Look at the argument, the fallacy of which, and if one would even say the absurdity of it. Anything wrong goes, that is responsibility of the BJP. How simple, almost simplistic, if you will also pardon that expression. I mean, by that standard, every the organization that is behind that thing says that no, we haven't done no wrong, but this person did it, it's their fault. It's the fault of the government against whom we were protesting. What kind of argument is this? Someone who breaks the law breaks the law. BJP infiltrating. This is the argument. You are known for that, Sorry, Mr. Tripathi, I didn't interrupt you. Let's have at least a decency. I heard you, sir. Please don't interrupt. Sorry. Let me put it like this. What kind of this? Suppose I say that everything that is being done is infiltration of the Nehru Gandhi family. How would Mr. Tripathi react to that then? This is not how it is in a logical debate, in a logical situation. Let's face it, there are bad elements who did that on that day. On 26th day, every Indian's head should hang in shame, including Mr. Tripathi. For all the assurances that they took, there were violent elements that came in there, injured 500 policemen, went out and desecrated things around. One person died also in that reckless tractor driving. What was the need for him to drive that tractor recklessly? Was that the BJP? Was it a BJP Karyakarta driving the tractor recklessly? So therefore, responsibility has to be taken by those who call for the Chakka Jam. The BJP joins the nation and requests you, please keep it peaceful. If you are going to protest, do it peacefully. You have a right to say what you wish to say in a democracy, but not by creating violence. And two, please bear in mind, other citizens have the same rights as the protesters. They have the right to liberty. They have the right to free speech. They have the right to expect that they can carry on with their lives without being bothered by someone who's protesting.
Oh yes, Dr. Sunil Singh and Ratan Shah are also on the debate, but then I want to get in Tejinder Singh Work now. And also Atar Singh Sandhu. 1 second, Mr. Tripathi. Mr. Tripathi. Okay, then let me ask you this. The Congress is officially supporting this Chakka Jam. So why will tomorrow you not be held responsible if, God forbid, we see the situation going out of control? Then Ratan Shah can also jump in. I just want to tell him that he put an if before the sentence. No, they blame everything on Nehru and Gandhi family. Don't be so repetitive. You talk about yourself, sir. Talk about yourself. Talk about 2021. Ratan Sharda, if the Congress party is officially with the farmers, they are with their call of Chakka Jam. Tomorrow, if God forbid something goes wrong, should they not be held responsible? See, it's very strange that people who say that we are the farmer leaders, So, will you forgive Congress party? I don't think so. Mister, can you please allow others to speak? You spoke for 10 straight minutes. Why are you afraid of facing the truth? No, you speak, Mr. Sharda. Carry on. I will not speak. So why can't I answer, madam? Who has placed a question before me? You are already on the defensive. No, I am not disturbing you, Mr. Ratan Sharda. Don't speak loud. You cannot run over me with shouting, by shouting on me. I have spoken. You are already imputing motives to me. Oh, so you hate Khap Panchayat. So you really hate the system of Haryana. You really hate judges. That is the thing. You hate judges. You hate Khap Panchayat. Why don't you ban them? Why don't you ban them? Ask the government to ban Mr. Shada. You force farmers. You progressive people are against Khap Panchayat. Went to force, and now using same Khap Panchayat to force farmers to join the agitation. Khap Panchayat or Republic? You are trying to stop farmers using same Khap Panchayat for against you went to courts to force farmers to support you. That is a level of leadership. And the Congress, let me tell you, Congress, Mr. Tripathi, Congress in MP killed people. So do you think the Khap Panchayats are governed by Congress? In Maharashtra. Are you saying so? Are you saying so, Mr. Sharda, that Khap Panchayats are governed by Congress? We are stopping the real farmers from joining the movement. Tripathi ji, why don't you make it fair and square now? And Tausif Ahmad Khan can also perhaps come in here. You know, Ratan, for the longest time we were told, Ratan, that this is only about the Kisan. ये सिर्फ किसानों के बारे में बात है. This is only about the Kisan laws. Then you had these political netas who decide to jump in. They go on the dais, Tausif Ahmad Khan. Will you be responsible tomorrow, Tausif, if something goes wrong? Or will you give us an assurance today, Tausif? Let's have Tausif on the screen, please. Tausif, will you give us an assurance that nothing will go wrong tomorrow? No, the assurance must come from the Prime Minister and the Home Minister, because we have seen that the person who had picture with the Prime Minister and Home Minister was the one who went to the Red Fort and raised those flags. And create the ruckus. Not allowing people to let the farmer rally towards the Red Fort. So the assurance must come from Tausif, I hate to come in here, but I have to make this intervention because I can't have a bit of fake news going on air like this, Tausif. Forgive me, Ratan, but we need to correct him. If, ladies and gentlemen, you will listen to gentlemen like Tausif and you are made to believe that, listen, there is just one man who's responsible for the violence on 26th of January. We are wrong, Tausif. 44 plus people have been identified. Talking about bad Their pictures are being circulated. The police is looking for them. So do not sit here and try to peddle fake news like this. Tell me about what happens tomorrow, Tausif. Tell me that. Rakesh Tikkair, the last time around, told us, Ratan Sharda, including Yogendra Yadav, that everything will be peaceful, Tausif. Calling the person martyr. Is that the kind of violence at least give an assurance. Why is an assurance, Ratan Sharda, becoming so difficult for them? October 2021. Farmer leader has already given assurance that their protest is peaceful. But we know that these are rich farmers. No, but you support them, right, Tausif? Tausif, you support them, right? And then I would want to get an Atar Singh then.
You support them. You support the farmers. Bad with BJP leaders. They sit on dharna, and that is how they control the farming community. These are leaders who are not done farming. Because landless Chabas Biharis work on the field, and these people come on the dharnas and stop every kind of work for others. Chakka jam is economy jam. They want to jam the economy. They want to create anarchy. These are the people called leaders. First, somebody must tell me, Rakesh Tikait supported the farm bill. What happened later? You must first tell me. Mr. Rakesh Tikait was supporting the agriculture bill. What happened? दिल्ली के चारों तरफ नुकीले तारों की और जिस तरह से पूरी बैरिकेड किया गया, ये किसानों के लिए एक सरकार ने एक ऐसा इंडिकेशन दिया कि किसानों से सरकार को खतरा है। किसान पिछले 3 महीने से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहा है दिल्ली में। किसान चाहता है कि अपने जो तीनों कानून बनाए हैं उनको सरकार वापस लेकर के आए, तो सरकार अपनी हरदर्मी पर है। अतर सिंह जी देखिए, एक छोटा सा ही सवाल है। अतर सिंह जी, बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछ रही आपसे, एक सिर्फ छोटा सा सवाल। क्या आप आज हमें, हमारे सभी दर्शकों को जो ये आपका ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, आप सबको ये अश्योरेंस देंगे कि कल सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा? और अगर कुछ गड़बड़ होती है, इस तरह की हिंसा हमें दोबारा दिखती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा अतर सिंह जी? मुझे सिर्फ यही जानना है। देखिए दीप्ति जी, पिछले 3 महीने से दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठा है बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठा है। उन्होंने कोई भी वायलेंस नहीं किया, और कल भी मैं विश्वास दिलाता हूं पूरा प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक रहेगा। लेकिन किसान की मंशा, सरकार की फिर भी मंशा है, कुछ ना कुछ उपद्रवी भेज के कुछ ना कुछ सरकार कर सकती है। उसके लिए सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। उपद्रवी आपके टेंट में रहता है, उपद्रवी आपके यहाँ जुलूस में जाता है, उसकी जिम्मेवारी आपकी कोई नहीं है, वो जिम्मेवारी बीजेपी की है। आपकी जिम्मेवारी केवल फैलाना, नफरत फैलाना, बीजेपी के लोग थे। जिम्मेवारी हिंसा फैलाना, और उसकी जिम्मेवारी नहीं। अतर सिंह जी, मुझे फिर आपको यहाँ रोकना पड़ेगा और तेजिंदर सिंह जी को भी लाते हैं। देखिए अतर सिंह जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों ने ये बोला कि जो भी पकड़े गए हैं पहले, वो सब हमारे लोग ही नहीं है। पहले तो आपने कहा कि ये सारे बीजेपी ने करवाया है सारा वायलेंस, उसके बाद आप लोग पहुंच जाते हैं इन लोगों को छुड़वाने के लिए रत्नाकर त्रिपाठी, और अब आप ये कह रहे हैं कि ये फिर बीजेपी का प्लांट है। तो अगर आपका इनसे लेना देना नहीं है, तो आप इनको छुड़वाने के लिए क्यों इतना परेशान हो रहे थे? अच्छा अतर सिंह जी, मैडम देखिए दीप्ति जी, पुलिस प्रशासन ने किसानों को गिरफ्तार किया। अरे एक सिर्फ दीप सिद्धू नहीं है सर, 44 और लोगों के नाम है, 44 पीपल। मैं क्या लिस्ट में से नाम बताऊं सर रत्नाकर जी आपको? तेजिंदर सिंह जी, क्या आप ये भरोसा देंगे सर कि कल सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा? तेजिंदर सिंह जी, लेकिन जिस तरह से 800 लोगों को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया, Gentlemen, let's listen to Tejinder Singh also. सरकार को छोड़े। अगर इनको चुप कराएंगे अगर, तो हम अपनी बात कहें, क्या हिंदुस्तान में पहली बार प्रोटेस्ट हो रहे हैं? ये पॉलिटिकल लोग, पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अश्योर करेंगे। अश्योरेंस कौन देगा? क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के लोग जो भारत बंद की कॉल करते हैं, तो कौन अश्योरेंस देता है? किसकी जिम्मेदारी होती है? हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि किसान कभी भी उपद्रवी नहीं है। अगर 74 दिन से देश की राजधानी में और पिछले 4 महीने से पंजाब के अंदर अगर शांति से बैठा है, तो कल भी हमारा शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है। कहीं भी कुछ भी गलत नहीं होगा। देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, देश के लोग हमारे लोग हैं। पूरा देश इस किसान आंदोलन को समर्थन कर रहा है। ये कुछ अराजक लोग लगातार भय पैदा कर रहे हैं, लगातार लोगों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं। नहीं, देखिए तेजिंदर सिंह जी, यही गलती अतर सिंह जी ने भी करी है। हम उस रूट पर, पहले आप मुझे ये बताइए कि जो 26 तारीख को हुआ, जो 26 तारीख को हुआ सर, उसमें दिल्ली पुलिस ने एक पूरी लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट में सर 44 लोगों के नाम है, 44 लोगों के नाम है। इसमें सुनील सिंह, यू कैन ऑल्सो जंप इन, because someone will need to take responsibility. I mean, we cannot just sit like this, Nalin Kohli, and let this continue. क्योंकि राकेश टिकैत ने तो सुनील सिंह ये तक बोला है कि हम अक्टूबर या नवंबर तक बैठे रहेंगे। तो क्या आने वाले 6, 7, 8 महीने इसी तरह सड़कें बंद रहेंगी? सुनील सिंह, Dipti, I can tell you that these Kisan leaders are in no position to give any assurances, because they know
that their movement is being hijacked by anti-national forces supported from international borders, and the opposition leaders, I mean, sad to say, they are also a part of it. For them, it has become a political tourism, and what they want is some kind of a disruption, some kind of a peace-breaking process would take place. But I really congratulate Delhi police that showed so much of restraint on 26 January, and all the leaders were saying, "Goli kyun nahi chalaya? Goli kyun chalaya?" That is what they wanted. That is what they wanted, but Delhi police showed restraint. This time also, some people in the garb of becoming Kisan leaders, they have tried to do some disruptions. They have tried to break the peace and fall into the hands of anti-national forces supported from international borders. And we see it, everything is coming and falling. You see, this is I think just the opposition an and the Kisan leaders, the protest which has gained, one second. Kisan which leaders, has wide support. the Kisan leaders, they say they are double speak. Sometimes they say they are not political. On the other hand, they encourage political tourism. All kinds of opposition leaders there. In Bihar, mainly peaceful for the last 70 days, more than 70 days, farmers are sitting at the Delhi border, and it has been mainly peaceful protest. Because the farmers in Bihar, occurred in they this know protest because is the all that of farmers have been implemented who have in Bihar either from since the cold 2006. or have committed Farmers suicide. are happy. So what are you Only talking about? Few states in the garb of anti-national movement. It has become those people in the garb of the farmers. It is very easy to learn this term they can never stoop down and then to just that level. And the leaders, the political leaders, for them, it has become a money-minting movement. Because if both of us speak over each other, because you know they don't. But Tausif, someone will need to take responsibility. No, Tausif, for the last 26 minutes, I've been trying to ask all these people who are backing the farmers. Nahi, Ratnakar ji, no one is willing to take responsibility, Nalin. This is curious. This is curious and very surprising. We are not used to taking responsibility. It's all about power and no responsibility. उसके चलते आप किसानों पर भरोसा नहीं कर सकती ना, यही बोल रही है ना आप। बुरा कुछ भी होगा तो आप जिम्मेदार हैं। हम कुछ भी करना चाहें वो ठीक है, जो अच्छा होगा। कोहली जी आप मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा। Now you are disturbing me. Don't have any cheek to give any say thing. लॉर्ड रत्नाकर जी, भाई साहब मैं आपको क्यों डिस्टर्ब करूंगा? आप चुप रहेंगे, मुझे बोलने देंगे? सवाल पूछा, अरे जरूर बोलिए भाई साहब, अगर वो आपसे तो फिर मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने प्रश्न, भाई देखिए कोहली साहब उन्होंने प्रश्न मुझसे पूछा, मुझे प्रश्न का जवाब देने दीजिए। मैडम आप ये बताइए कि आप सिर्फ किसानों पर इसलिए नहीं भरोसा कर रही हैं कि 26 जनवरी को दंगा हुआ, यही ना बोल रही हैं? उनकी हिस्ट्री के चलते अभी रिसेंट आप मानते हैं दंगा हुआ सर? रत्नाकर जी आप मानते हैं दंगा हुआ? सुनिए रत्नाकर जी आप मान रहे हैं दंगा हुआ ना? आप बोल रही हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ? आप बोल रही हैं, मैं बोल रहा हूँ। आपको नहीं लगता क्या हुआ था 26 तारीख को? क्या हुआ था रत्नाकर जी? नहीं यही दिल्ली, सुनिए अब मैडम अब मेरी बात सुन लीजिए। आप जिस दिल्ली पुलिस को संत बता रही है ना, इसी दिल्ली पुलिस ने अंसर प्लाजा में 2 व्यापारियों को आतंकवादी बना के मार डाला था। अभी 2019 में सजा हुई है। इसी दिल्ली पुलिस के राजवीर सिंह फरीदाबाद में गुंडों। सवाल आपसे कुछ और पूछा जाता है, जवाब आप कुछ और देते हैं, क्योंकि आपको सवाल का जवाब पता नहीं, क्योंकि आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। सिलेबस में बस इतना ही है कि विरोध करना है, प्रदर्शन करना है, दंगाई करनी है, भारत को रोकना है, लोगों को इनकन्वीनियंस करना है। मुझे नहीं समझ आता अतर सिंह संधू, ये क्या चल रहा है? अतर सिंह जी एंड देन आई विल गेट इन नलिन आल्सो। अतर सिंह जी मुझे ये बताइए, ये कब तक चलेगा सर? राकेश टिकैत तो ये कहते हैं कि हम अक्टूबर नवंबर तक बैठने को तैयार हैं। तो क्या सड़कें ऐसे ही बंद रहेंगी? लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? इतने लोगों के लाइवलीहुड्स, उनके जॉब्स इस समय अफेक्ट हो रहे हैं सर, उनका क्या होगा? देखिए दीप्ति जी, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग,
हम हमारा जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते, जब तक हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे। इसके लिए भले 3 की जगह 3 साल लग जाए, सरकार को हमारे आना पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि सरकार 100 करोड़ जनसंख्या है, किसान और मजदूर है देश में। सरकार के बीजेपी सरकार में 3 सांसद से 300 सांसदों को हमने ही बनाया। अगर सरकार तीनों बिल वापस नहीं लेगी तो अगले चुनाव में 300 से 3 सांसद हो जाएंगे। ये तो ब्लैकमेल हो गया ना, ये तो ब्लैकमेल हो गया और किसानों का साथ blackmail. Pasha Patel, the former chairperson of the Maharashtra CACP, I also see him there. Good evening, Pasha Patel. But before I get you, Pasha Patel, Sardar Balwinder Singh also has been wanting to make his point. सरदार बलविंदर सिंह जी, क्या किसान हमें इसी तरह ब्लैकमेल करते रहेंगे सर? ब्लैकमेल होते रहेंगे हम लोग? नहीं, ब्लैकमेल नहीं है मैडम। मैं देखिए बड़े प्यार से आपसे कहना चाहता हूँ, ये किसानों के लिए ये आंदोलन चल रहा है ना, मेरी बात सुन रहे हैं? ये इतने दिन आंदोलन सही तो चलाने की कोई वजह नहीं दिखती मुझे। एक बात ऐसी है कि हमको क्या चाहिए, सरकार अगर कह रही है ना कि आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए, आपको 3 कानून में क्या क्या बदलाव चाहिए, वो बदलाव हम करके देने के लिए तैयार है। जब ऐसी बात सरकार अगर कहती है तो इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तैयार नहीं और इतना अगर हंगामा करना होता तो उसमें कुछ प्रॉब्लम रहने का कोई कारण नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम हल करने के लिए तैयार है, तो फिर ये शौक है क्या रास्ते पे बैठने का? मुझे लगता है कि हमने भी बहुत सारे आंदोलन किए महाराष्ट्र में, लेकिन जब सरकार बात करने को तैयार नहीं होती, लेकिन जब सरकार जो मसला डिस्कशन से हल होता है, सामने बैठने से हल हो सकता है, आपस में अपनी बातें करने से हल हो सकता है, तो सरकार बात करने के लिए तैयार है। फिर आप ये हंगामा क्यों कर रहे हो? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मुझे नहीं लगती, तो इसलिए सरकार के साथ बलविंदर सिंह जी वजह बताइए सर। मुझे बोलने देंगे, मैं फिर ही बताऊंगा ना। आप बोल सकते हैं? हाँ जी बताइए। मैडम मैं प्यार से जी बताइए सर। ये बात कहना चाहता हूँ, मैं किसी डिस्कशन में नहीं पहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये देश हमारा है, ये किसान है, ये भी हमारे देश के किसान हैं, हमारा अन्नदाता है। अगर इस कोरोना 19 में जो प्रॉब्लम को किसी ने फेस किया, सबसे ज़्यादा किसानों ने किया, जिन्होंने अनाज के भंडार पाए और गरीबों को खाना मिला। और अगर ये टैक्स भी मिल रहा है, ये सबसे ज़्यादा डीजल पे है जो किसान बरतता है। टैक्स में भी, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह तो सब बंद हो गई हैं, इसलिए कितने कारण है, टाइम कम है, मैं उनमें जाऊँगा नहीं। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि किसानों के लिए अब जो लफ्ज़ आप बरतते हैं कि ये ब्लैक मेलिंग करते हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये लफ्ज़ बरतना नहीं मैडम चाहिए। क्योंकि कोई एक बंदा गलती करता है, उस गलती से सारी कोई कम्युनिटी या सारा देश दोषी या सारी कौम नहीं हो जाती। कुछ लोग हर जगह गलती करते हैं, हर कौम में करते हैं, हर पार्टी में करते हैं, हर जगह करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनको देश को या कौम को या कम्युनिटी को या किसी यूनियन को बदनाम नहीं करना चाहिए। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ आपको कि आज तोमर जी ने जो कहा कि इस बिल में क्या गलत है, मैंने उनको एग्जाम्पल देकर और उस क्लाज को जो सीड टू मार्केट था उससे बताया कि ये एक लाइन ही है जो ये हिडन एजेंडा है जिससे किसान का नुकसान हो रहा है। और मल्टीनेशनल कंपनी जब आ जाएंगी, 1 एकड़ से 5 एकड़ तक का जो 80% किसान है इंडिया में, जहाँ जे 7 एकड़ तक चले जाओ तो 90% किसान है, जे उसको फेस नहीं कर सकेगा। 2-3 साल तो उनको रेट मार्केट से ज़्यादा देंगे। जब मार्केट ख़त्म हो जाएगी, मार्केट कमेटीज ख़त्म हो जाएगी, सरकार पीछे चले जाएगी, क्योंकि लीगल गारंटी कोई नहीं एमएसपी की, तो उन पे कंट्रोल सारा कंपनीज के पास आ जाएगा। आस्ता आस्ता रेट भी उसकी मर्ज़ी का हो जाएगा। जब वो प्रोसेसिंग करके मार्केट में आएंगे तो वो कंज्यूमर के लिए भी उसकी मर्ज़ी का रेट हो जाएगा। और जो सीड टू मार्केट है, फर्टिलाइजर भी उसकी, पेस्टिलाइजर भी उसकी, पेस्टिसाइड भी उसकी, हर्बिसाइड भी उसकी, सीड भी उसका, प्रोसेसिंग भी उसकी। जब सारा उसका कंट्रोल हो गया, होर्डिंग भी उसके पास है,
ओपन ट्रेड भी उसके पास है, तो कंटेक्ट भी उसके पास है। तो आस्ता आस्ता जो कंपनी है जो फार्मर को कैप्चर कर जाएंगे, मर्जी के रेट देंगे, फार्मर कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर होने के बाद जब कर्जा चढ़ जाएगा उसकी ज़मीन चले जाएगी, वो लेबर क्लास बन जाएगा। और मार्केट जो कहते हैं कि हम भंग नहीं करेंगे, मार्केट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। जब सरकार की गारंटी कोई नहीं, लीगल जो है MSP की, फिर वो मर्जी का रेट देगा, उसकी मर्जी है, अकेला रह जाएगा। अब मल्टीनेशनल कंपनी जो वर्ल्ड में है, वो ग्लोबल सर्वे में आया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 4-5 कंपनी है सारे वर्ल्ड में, और उसका जो ट्रेड पे इस पे कब्जा है एग्रीकल्चर में। यूरोप में जो लाभ पहले आ चुके हैं, वो 15% था जब स्टार्ट की, अब वो 40% चले गया। जिस ग्लोबल सर्वे हुआ है USA वालों ने कराया है, और USA में, यूरोपियन यूनियन में जे क्यों, ठीक है, आप जरूर पूछिए, जरूर। देखिए सरदार बलविंदर सिंह साहब, आपने तसल्ली से सर, आपने तसल्ली से अपनी बात रखी, लेकिन पाशा पटेल आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, और एक छोटा सवाल मैं भी आपसे पूछूंगी, देन पाशा पटेल कैन कम इन। सरदार बलविंदर सिंह जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह की अराजकता, जो अराजकता हमने 26 तारीख को दिल्ली की सड़कों पर देखी है सर, और अभी भी अगर राकेश टिकैत जैसे लोग ये बोलते हैं कि अक्टूबर-नवंबर तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, इससे नुकसान किसका होगा? आम जनता का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है ना। सरदार बलविंदर सिंह जी, आप कम से कम ये मानते तो हैं कि किसानों की बात है, आप बैठकर बात करिए, उसके लिए ये सब वायलेंस करने और अराजकता फैलाने का क्या मतलब? प्लीज लिसन मी। आपने जो क्वेश्चन किया वैलिड क्वेश्चन है कि जो हिंसा है या जो हुआ उसको कोई भी अच्छा नहीं मानता, वो अनफॉर्चुनेट था। उसका क्या कारण है, किन्होंने किया, उसकी डीप इंक्वायरी की ज़रूरत है। वो टोटल किसान 2 लाख के करीब ट्रैक्टर आया था, 30-40 ट्रैक्टर वहाँ गए, वो कैसे गए, कैसे किले तक पहुँचे? हम 50 साल से दिल्ली में आते हैं, 72 से मैं MLA बना हूँ, वज़ीर बना हूँ, तीसरी बार पार्लियामेंट में हूँ, लेकिन मुझे नहीं लाल किला लगता। अगर मैं जाऊँ मैं भी चुक जाता हूँ कि कहाँ से किधर जाएं, लाल किला कहाँ रह गया। वो लोग कैसे वहाँ आए, जब बैरिकेड थे कैसे आए, इसकी पड़ताल करने की ज़रूरत है। कौन लोग थे, कैसे से, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट था, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो किसान है वो शांतिपूर्वक है, वो अन्नदाता है, टोटल किसान को ब्लेम नहीं कर सकते हम। अगर किसी एक ने कोई नुकसान कर दिया कि टोटल उसको को या उसको बदनाम कर दिए, नहीं होना चाहिए। ये अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, उसको मैं अप्रूव नहीं करता, मैं डिसअप्रूव करता हूँ। बलविंदर सिंह जी, मुझे एक बात ऐसी कहनी है कि आप कह रहे हैं कि ये सारे कंपनियां आके किसानों की जमीन हथियाएंगे। मैं ये आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो कानून है ये कंपलसरी है क्या? हर किसान कंपलसरी अपनी जमीन ये कंपनियों को देना चाहिए, ऐसा कंपलसरी है क्या? नंबर 1। नंबर 2, अगर कंपलसरी नहीं है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, यही सुनो और दूसरी एक बात बताना चाहता हूं मैं। 83% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। 83% किसानों के पास अगर 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, ना इसमें कोई लागत आ रही, ना इसमें कुछ टेक्नोलॉजी आ रही, और ना इस किसानों का प्रोडक्शन बढ़ रहा। प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ रहा, लागत भी नहीं बढ़ रही, और टेक्नोलॉजी भी नहीं आ रही। तो क्या इसमें से निकलने के लिए दूसरा कुछ रास्ता इसके सिवा है आपके पास? हाँ, यही अच्छा आपका जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है। इसी को समझने की लोड़ है कि कहीं भी इस कानून में नहीं लिखा कि जमीन किसान की ज़मीन चली जाएगी, कहीं भी नहीं लिखा कि ये मंडी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये हिडन है। यही तो है कि जो आपने बोला कि 83% किसान 5 एकड़ के नीचे है, वो किसान कैसे डेवलप कर सकता है, कैसे मॉडर्नाइज करता है, स्मॉल फार्मर है, बात ठीक है आपकी। यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट ने लीगल गारंटी MSP की नहीं दी, जैसे 23 क्रॉप्स की, दूसरों के नहीं, जो सिर्फ 2 क्रॉप ही है, बीट एंड पैडी, ये भी 10% है, 90% की उसको भी नहीं मिलती। अगर जो जब ये गारंटी नहीं, 2 एकड़ वाला फार्म कॉन्टैक्ट फार्म के लिए वो अच्छा रेट देगा, कंपनी वाला चला जाएगा।
अगर वो अपनी क्रॉप लेके जाता है वो अच्छा रेट देगा, उसको ओपन ट्रेड का मिला है, उसके ऊपर टैक्स नहीं, किसान चला जाएगा। 2 साल के बाद ये जो किसान है इस पे निर्भर हो जाएगा, FCI विड्रा कर जाएगी, जो कि नीति आयोग बार बार कहता है कि विड्रा करना चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं। नीति आयोग की रिपोर्ट आ रही है, बार बार हमने पढ़ी है, इसीलिए तो ये शंके पैदा हुए, शंके नहीं जो बात आई है। नंबर 1 सरदार बलविंदर सिंह जी, मार्केट खत्म हो गई, प्लीज लिसन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहस फालतू करने का नहीं, पॉइंट की बात का फायदा है कि जब वो मार्केट खत्म हो जाएगी 2 साल के बाद, उस पर डिपेंड हो जाएगा। ऐसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसका रेट भी मर्जी से देगा। जब मोनोपोली उसकी होगी, जो किसान से लेगा उसका रेट भी मर्जी के देगा। उसके जो किसान को रेट ठीक नहीं होगा, MSP की गारंटी नहीं होगी, वो कम रेट देगा, फार्मर पे कर्जाई हो जाएगा कंपनी का, ऑटोमेटिकली जमीन उस कर्जे में चली जाएगी और मार्केट के लिए पहले खत्म हो जाएगी, तो मार्केट भी खत्म हो जाएगी। और जो जमीन है, ये सारे जितने प्रोटेस्टर हैं ये कानून की बात नहीं कर रहे, कानून में क्या हो सकता है, केवल डरा रहे हैं लोगों को। चाचा जी मुझे ये बताइए, आप लोगों को डराने का काम है आपका? आप प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं, MSP गवर्नमेंट ने विड्रॉ की है क्या? ओ भाई साहब, MSP गवर्नमेंट ने विड्रॉ की है? नहीं की है। गवर्नमेंट ने मंडियां विड्रॉ की है? नहीं की है। आप लोगों ने मंडियों में किसी का बचाव किया है? नहीं किया है। आपकी मंडी वाले लोग मैनिपुलेट करते हैं रेट। अरे आप अपनी मंडियों की बात करिए ना, आपके आड़ती और एजेंट रेट मैनिपुलेट करते हैं, किसान को सही रेट नहीं देते, इसके लिए अगर किसान को और छूट मिलती है तो दिक्कत क्या है? पंजाब के अंदर पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, क्या किसानों की जमीन चली गई? इस कानून के अंदर साफ लिखा है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जमीन किसी भी हालत में नहीं जाएगी। तो आप क्यों कहते हैं कि जमीन जाएगी? ऑलरेडी सारे भारत के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके डायरेक्ट ऑलरेडी परचेज हो रहा है। कितने किसानों को नुकसान हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने फसलें चेंज कर दी, लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप केवल वही फसल चला रहे हैं जो आपकी जमीन खत्म कर रही है, जिसके लिए पानी आपको मुफ्त में उठाना है, आपको बिजली मुफ्त में उठानी है, आपकी मंडियां पूरी करप्ट हैं, उसको जब फीस आती है, मैंने कभी पंजाब में एक भी मंडी के आसपास ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा, तो मंडी की फीस लेके आप लोग क्या करते हैं? मुझे बताइए आप लोग। आपकी मंडी की फीस खा जाते हैं आपके नेता। मंडियों का कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, वेयर हाउस का इंप्रूवमेंट नहीं है। आप लोग कहते हैं कि मंडियां चलनी चाहिए। But you know, Ratan Nalin also wants to come in. What we'll do is we'll have Nalin Kohli, Ratan Sharda, Atar Singh Sandhu and Tajinder Singh work now on screen. Let's do one thing. The points that have been raised by Sardar Balwinder Singh Bhundar and Pasha Patel, Nalin, are the kind of debates and conversations we should have. Not such violence, Nalin. Absolutely. भुंडर साहब इज कमिंग अक्रॉस विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन भुंडर साहब इस पे एक दूसरा पॉइंट भी तो इतना ही वायलेट है। आप जो बिल्कुल कहते जा रहे हैं कि ये खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे भुंडर साहब मुझे बताइए, कोई दुनिया में कोई ऐसी गारंटी है कि आप और मैं अगर सड़क पे चल रहे हैं और एक खंबा हमारे सर पर नहीं गिर सकता? कोई गाड़ी दूसरा अगर गाड़ी कोई आदमी चला रहा है, कोई गारंटी है कि दूसरा आदमी बाई चांस गलती से एक्सीडेंट उसके साथ ना कर दे? मतलब जिंदगी की गारंटी नहीं है, आप ऐसे गारंटी कर। अच्छा मुझे ये बताइए, आज तक जो पूरी प्रोसेस चल रही थी उससे किसान हो गया खुशहाल? कि हर किसान इस देश में ऐसा खुशहाल हो गया कि आज उसको कोई दिक्कत नहीं है? तो यहाँ पर आपको अगर APMC पसंद है तो है, हटाया किसने है? अभी रतन शारदा जी ने बताया कि APMC के अंदर में जो पूरी स्थिति है उससे किसान खुशहाल नहीं हुआ, वो फिर भी जाना चाहता है तो जाए। MSP तो है, हर साल सरकार जो मोदी जी की सरकार ने MSP बढ़ाई या नहीं बढ़ाई? क्या MSP पे और खरीदारी हो रही है नहीं हो रही है? भाई साहब बीच में क्यों बोल रहे हो आप? मैं तो बता रहा हूँ आपको, आप जो है मतलब अड़ गए कि नहीं हम नहीं चाहते ये ऐसा हो। क्यों अड़ गए आप? अरे किसी किसान से 1.5 साल के लिए सरकार ने कहा कि हम इसको साइड में कर देंगे, तब भी आप कहते हो कि हम सुनने को चाहते नहीं है। आप लोगों ने अड़ ले लिए। एक मतलब ऐसे कोई जिंदगी में होता है कि हम ही जो कहेंगे वही होगा। सरकार ने यहाँ तक कह दिया, 11 बार मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी के सामने जाइए, हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, हम जो है सिर्फ धरना करेंगे, हम जो है अपनी नेतागिरी करेंगे। यही कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि चलो भाई 1.5 साल के लिए रोकते हैं, बातचीत करते। इस काला कानून है, काला कानून है, कानून में काला क्या है ये तो बताया नहीं आपने आज तक। तो ये कहाँ की बात हुई भाई साहब? मतलब हर चीज जो है दूसरा आदमी गलत है, हम ही एक सही है, हम ही एक सही है। ये तो नेतागिरी वाली बातें हैं, ये किसानों वाली क्या बात है? कानून में कमी है।
आपके देखिए अमेंडमेंट क्यों करना चाहते, देखिए आप फिर अमेंडमेंट क्यों कराना चाहते हो जब आपको पता नहीं कानून गलती, अमेंडमेंट क्यों कराना चाहते हो? देखिए जो कानून गलत है हम तो कहते हैं उसको गिरफ्त करिए, अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या है? मैं ही ज्ञानी हूँ, ये कौन सी सोच है? मतलब बताइए मुझे मूर्ख मान सकते हैं, आपका अधिकार है, पर ये किसने आपको अधिकार कहा है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं? उन्होंने एक प्रत्येक खोल कर रख दी कानून की, तो मुझे विश्वास कर रहे हैं। 1.5 साल के लिए सरकार ने कहा हम इसको साइड कर देते हैं। मैं केंद्र के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि भैया मुझे बताइए क्या काला इसमें कानून, काला कानून कौन सा प्रावधान काला है? कृषि मंत्री तो ये नहीं कहते आज खून खराबे की बात करते हैं, आपके कृषि मंत्री तो आज संसद में खून खराबे की बात करते हैं। अरे क्या कृषि मंत्री ने बोला, इतने सज्जन व्यक्ति, इतने सज्जन पुरुष हर व्यक्ति की बात सुनते, शांति से सुनते, 11 बार वार्ता की, आप लोग जो है खून खराबा करवाए आपके किसी समर्थकों ने जाकर 26 जनवरी को कहा कृषि मंत्री ने जब दिल्ली में ये तांडव हुआ, बताइए लाल किले में जो तांडव हो रहा था उसमें कृषि मंत्री कहाँ गए? बचाए किसान ने, आज उस अन्नदाता की बेकदरी हो रही है। 195 किसान शहीद हो चुके हैं, तो उनके कंपनसेशन का क्या होगा? सरकार की जिम्मेदारी 9 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे अगर लिसन नहीं करना मैं छोड़ता हूँ। उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दे सरकार की जिम्मेवारी बनती है। Atar Singh, let's have Tajinder Singh also on the screen. काला कानून है, Tajinder कानून Singh के बारे में कुछ बोलना नहीं है। Tajinder Singh, let's have a substantial debate. This is what the center has been saying. बार-बार आपको सरकार ये बोल रही है आप बैठ के बात करिए, लेकिन आप तो वायलेंस का रास्ता अपनाते हैं, आप अराजकता का रास्ता अपनाते हैं। इससे किसका फायदा होता है? तजिंदर सिंह कहिए, मेरी बात को सुने। वायलेंस क्या वायलेंस है? कौन सी वायलेंस है? आप कह देंगे एक बार एक झूठ को 10 बार कहोगे वो सच हो जाएगा क्या? कौन सी वायलेंस है? कानून बनाए तीनों, ये तीनों कानून फायदे के लिए थे, तो 15 संशोधन केंद्रीय मंत्री तोमर जी ने क्यों किए? उसके अंदर अगर ठीक थे तो, अगर कानून ठीक थे तो फिर 15 संशोधन उसमें क्यों हुए? इसका मतलब कानून खराब थे, अगर खराब हैं तो उन्हें खत्म होना चाहिए। ये देश का किसान कह रहा है, आप कह रहे हो वायलेंस करते हैं। 11 बार की वार्ता हो गई, हम सीधे सादा देश का किसान है, ये वायलेंस करने नहीं आया, अपना हक लेने आया है। नलिनी जी आपने 15 संशोधन क्यों किए? ये देश का किसान हाथ में इसकी जो तिजोरी है खाने की। जी आप वायलेंस करेंगे, आप ब्लैकमेल करेंगे सुनील सिंह। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारी सुनो, नहीं तो हम सब कुछ बंद कर देंगे। देश का किसान आपकी चौखट पर बैठा है और आपने कहा कि आपने रोड बंद कर दिया, देश के अंदर अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। हम रोड बंद करके नहीं बैठे हैं, हम दिल्ली की राजधानी जाना चाहते हैं। आप हमें रास्ता छोड़ दो, हम जंतर मंतर रामलीला ग्राउंड पर जाकर बैठेंगे। हमने रोड बंद नहीं किया, पुलिस ने हमें रोक रखा है। दूसरी बात आपने कही कि 2.5 महीने हो गए, 9 महीने तक देश की रेल बस जहाज बंद रहे कोरोना के अंदर, तब देश भूखा नहीं मरा। जब हजारों लोग पैदल बिहार को जा रहे थे तब लोगों की चिंता नहीं थी। अब अगर किसान हक मांगने के लिए आ गया तो आज देश खतरे में है। ऐसा बेहुदा सवाल करते हैं। इस देश के किसानों की बात सरकार को सुननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। करके आप शरारती तत्वों को कमाल है। रतन शारदा तेजिंदर सिंह वर्ग कहते हैं कि बेहुदा सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी जब तक मर्जी होगी रतन शारदा वो इसी तरह बैठेंगे, सब कुछ बंद करेंगे रतन शारदा। देखिए मैं इनके तर्क का सिंपल जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा, देखिए आपने कहा कि किसान मंत्री ने 15 अमेंडमेंट किए, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि सरकार सुन रही है, तो आप बैठक में बैठेंगे और भी जहां जहां कमी दिखेगी तो कानून बदले जा सकते हैं। आप कहते सारे कानून जड़मूल से निकाल दो। 14 साल इस कानून के ऊपर हर पार्टी ने अपने अपने वक्तव्य दिए हैं। कांग्रेस, अकाली दल, टीएमसी, जितने भी पार्टियां हैं सबने इसको सपोर्ट किया है, सबके मैनिफेस्टो में था। इसके बावजूद आज आप उसको अपोज कर रहे हैं कि पूरे निकाल दिए जाए। उसमें सुधार करिए ना, आप उसमें गलतियां निकालिए। सरकार सुनने को तैयार है, 15 क्या 30 चेंजेस करवाइए, लेकिन आप कहते हैं निकाल दो, तो उसके बाद कौन सा कानून आएगा? पंजाब में कानून नहीं था, पंजाब के कौन से किसान खुश थे? कौन से पंजाब के उसका जवाब आज तक दिया नहीं। अरे आप तो बोलिए ही मत, आपके टिकैत सपोर्ट करते हैं, अपोज करते हैं, आप तो थाली के बैंगन है।
आप पहले सपोर्ट कर रहे थे, जब अपोज कर रहे हैं, सरकार खुद कर रही है, खामियां है तो निरस्त करिए ना। एमएसपी का कानून बनाइए, मंडी के बाहर भी, मंडी के अंदर भी आप कानून बनाइए। बैंगन है, जहां आपको वोट दिखते हैं उधर आप जाते हैं, आपको कोई किसानों के भले से लेना देना नहीं है। अगर किसान को परेशानी होती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के बारे में ऐसा बोलना, किसानों के बारे में अंदाता कैसा बोलना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो कहता हूँ आपको टी बैठने का अधिकार नहीं। किसान को थाली का, आप तो शोरूम खोल के बैठे हैं, आप शोरूम खोल के बैठ के आप करोड़ों की संपत्तियां बना के बैठे हैं। आप गरीब किसान के छाती पर बैठ के आप किसान के बारे में करना चाहते हैं, उसको स्वीकार करिए। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हो आप। मैंने कोई अभद्र भाषा की बात नहीं की। ऐसे आदमी को टीवी बैठने का अधिकार नहीं है। आपको किसने राइट दिया? किसान को थाली का बैगन बताइए मुझे, आपको किसने राइट दिया किसान को थाली का बैगन बोलने का? आप समझ वापिस लीजिए, आप समझ वापिस लो। आपने किसान को कैसे बोल दिया? आपकी क्या हिम्मत है? किसान को नहीं बोला, टिकैत को बोला है। टिकैत ने सपोर्ट किया, टिकैत ने अपोज किया। आप देश का खाते हो, आपको डूब मरना चाहिए। अरे तो किसानों का खाते हैं, ऐसे नेताओं का नहीं खाते जिनके शोरूम खुले हैं, जिनके लिए लोग काम करते हैं, वहां पर लीडरी छत चमकाते हैं वो लोग। उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। उन्होंने सपोर्ट किया था कि नहीं किया बताइए मुझे। उन्होंने सपोर्ट किया था कि उन्होंने कहा था मेरे पिताजी का सपना पूरा हुआ। उस सपने को पूरा होते होते देख के अब उनकी भाषा के बदले इसका उत्तर आप मुझे दीजिए। मैं अपनी भाषा वापस लेता हूँ, मैं थाली का बैंगन वापस लेता हूँ। आप मुझे बताइए कि वो पहले सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया, तो अब क्या हो गया बताइए मुझे। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मैं अपना बयान वापस लेता हूँ, मैं अपना बयान वापस लेता हूँ। आप उत्तर दीजिए कि जो अपने पिताजी के नाम पर कह रहे थे कि कानून बदले अच्छा हुआ, आज मुकर क्यों गए? इसका जवाब मुझे दीजिए, मैं अपना बयान वापस लूंगा। आप बताइए कि जो मैंने सपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे मेरे पिताजी के कारण ये अच्छा हो गया, आज आप मुकर कैसे गए? उनको बरगला गया था। महीने वैसा क्या हो गया कि सबकी भाषा बदल गई? हम भी कहते हैं, अरे अखबार में स्टेटमेंट था, खुद गया था कृषि मंत्री के पास। मैं खुद भी कृषि मंत्री के पास गया, वो तो मैंने भी तारीफ की थी। लेकिन जब मैंने कानून को पढ़ा, इन कानून में बहुत बड़ी खामियां हैं, तो मैं भी। फिर बात कीजिए मेरी भाषा की। यहाँ केवल लड़ने आते हैं, आपको बिल के ऊपर ढंग से बात नहीं करनी, आपको क्लॉज पे बात नहीं करनी, आपको बिल वापस करने का जिद करनी है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम मोदी जी से है। थाली का बैंगन बोलते हो, आपको थाली का बैंगन बोलते हो किसान को, आपको तकलीफ। अरे मैंने कहा थाली का बैंगन वापस लूंगा, मैं कहता हूँ बयान वापस ले रहा हूँ। आप मैंने कहा बयान वापस ले, आप पहले बताइए टिकैत साहब ने बदली की नहीं बदली स्टेटमेंट। मैं बताता हूँ। अतर सिंह जी, आपको अच्छा लगा ये देखकर कि आपको अभी भी ये पता है कि कहां गलत और कहां सही की लाइन है। लेकिन वही सही और गलत की लाइन सर बाकी आम लोगों के लिए भी अप्लाई करती है। तजिंदर सिंह वर्क साहब, जिस तरह अतर सिंह को इस समय गुस्सा आ रहा है और उनको ये लगता है कि किसानों को अटैक किया जा रहा है, आप ये समझिए ना बाकी देश के लोग क्या सोच रहे होंगे इस समय। जिस तरह का वायलेंस हुआ, तेजिंदर सिंह साहब ये बताइए ना 26 तारीख को उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नलिन कोहली, वी हैव नेवर सीन सच images on the Republic Day. What happened at the Red Fort? Our blood was also boiling. तेजिंदर सिंह साहब, तब आप लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आता है? जब आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, यहां पर अतर सिंह संधू साहब, जब पॉलिटिकल पार्टीज आप लोगों का इस्तेमाल करती हैं, जब विदेशी ताकतें आप लोगों का इस्तेमाल करती हैं, तब आपको गुस्सा क्यों नहीं आता अतर सिंह जी? देखिए मेरा यही कहना है, हम गुस्सा भी नहीं है। अगर नाता के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। हमने उसका जवाब दिया। हमारा यही कहना है, सरकार किसी ने किसी भी तरह के गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है सर। कानून को अतर सिंह जी, मुझे ये बताइए ना, आप अभी तक चाहे आप हो, चाहे तजिंदर सिंह हो, चाहे रत्नाकर जी हो, किसी ने मुझे इस बात का अश्योरेंस नहीं दिया, ये गारंटी नहीं दी, ये विश्वास नहीं दिया सब लोगों को, रतन शारदा, कि टुमारो विल बी पीसफुल नलिन। Why not? Why not अतर सिंह जी, रत्नाकर त्रिपाठी? कुछ भी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन गारंटी नहीं देंगे। लेकिन सरकार से पूरी गारंटी चाहिए, हर गारंटी दूसरे से चाहिए, हर गारंटी दूसरे से चाहिए। खुद भाग रहे हैं। मेरा बयान रिप्ले कीजिए ना। हाँ, मैं तो बोल ही रहा हूं, अगर बोलने देंगी तब मैं बोलूंगा।
पहली बात तो रतन शारदा और नलिन कोहली जी जान लें। अरे क्या बात कर रहे हैं, आपके पास जवाब ही नहीं है सर। कहीं से भी किसी में सर 55 मिनट होने वाले हैं, मैं आपसे लगातार ये सवाल पूछ रही हूँ। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की है नलिन, दे हैव ऑफिशियली सपोर्टेड द कॉल फॉर चक्का जाम टुमारो। हाँ की है। So be a man, tell me रत्नाकर जी कि कल जो भी होगा सब कुछ पीसफुल होगा, and we are with the farmers. We'll be responsible. Will you say that? How did you find that I'm not being a man? Then please tell me, how did you find that I am not being a man? Replay my earlier. Sir, now you tell me. We are towards. I told you. We are towards the last point. At least Nalin has smiled now. Ratnakar ji, I know you're a man. I know you're a man, sir. Ratnakar ji, I know you're a gentleman. और बताइए ना. So take responsibility, sir. You're a gentleman. और take responsibility, sir. कि agriculture you're a gentleman, sir. छोड़िए ना. Central government. Agriculture is not. All right, we are watching that space. Nalin, we are watching the space. We are watching the assurances. Only for a word of time. Thank you, gentlemen. Thank you so much.